Namaste students, how are you all? Hope all of you are well, all of you are doing well. Actually today we are going to discuss about chapter number 4, chemical bonding. In the previous video I have already described you about what is chemical bonding, types of chemical bonding and ionic bonding. I hope all of you have seen that previous video. If you have not seen that previous video, you can open my channel and you can go in the playlist option. In the playlist option there is standard 11 chemistry. In that you can click and the previous video of this video, then you can see that about the chemical bonding. There are 3-4 videos, but in the videos wherever I had explained in the front of camera, go through that. In that video I had explained to you about the chemical bonding. If anybody has not still yet understand about what is chemical bonding, not an issue, I'll explain it again. So let's start with the chemical bonding. So first of all, nature loves stability. All of you know very well. Each and every object in the nature loves stability. Similarly in the periodic table, if I talk about any elements of the periodic table, hydrogen 2 and an octium and still the 118th element, each and every element loves stability. They are very much affinity to gain their stability. And we know about the inert gas elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These elements are stable. These elements do not take part in the chemical reaction generally, but except these elements, rest all the elements has an affinity to gain their nearest inert gas configuration. Why or what is inert gas configuration? Inert gas configuration means they are having NS2-NP6 configuration except helium. Helium is having NS2 means doublet configuration, except helium means neon, argon, krypton, xenon, radon. Each and every element has NS2-NP6 configuration, that is in their outermost cell they has octet electrons, means they are having 8 electrons in their outermost cell. Now question is about, if they are having 8 electrons in their outermost cell, they are well stable. What's about these elements? Now there are generally 2 types of elements: electropositive and electronegative. All the metals are electropositive elements and all the nonmetals are electronegative elements. Metals means you can come to the S block elements, alkali and alkaline earth metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, till lithium to cesium. If I talk about, these are highly electropositive elements. And if I talk about the electronegative elements, halogen family, fluorine to iodine or anthiston, means these all are highly electronegative elements. So what happens? Highly electropositive elements and highly electronegative elements, these both the elements attract with a force. Why they attract with the force? Because these highly electropositive elements has a tendency to gain their nearest inert gas configuration. If I talk about the sodium, sodium has a tendency to gain nearest inert gas configuration, means neon configuration. They are gaining neon electronic configuration, so the sodium will be stable by donating 1 electron. Similarly chlorine, if I talk about, chlorine will take electron and they will gain, chlorine will gain argon electronic configuration, so they will also become stable. And to gaining after these electronic stability, they get a bond formation. Generally, how do they get stable? By donating or accepting an electron, means by removing 1 electron or by gaining 1 electron. So as you know very well, all the electropositive elements do not get generally 1 electrons in their outermost orbit. They have to come in their gaseous state and after then they gain stability, right? So let's start, as I am showing you in the periodic table how these things happens. The chapter name, chemical bonding. As I was talking about, there are 2 types of elements, that are electropositive elements and electronegative elements. The meaning of
electropositive elements means an element which loses the electrons are called electropositive elements, and elements which gains the electrons are called electronegative elements. These elements will have positive charge on it, and these elements will have negative charge on it. What is chemical bond? When two atoms are bonded means they both are hold with each other. Just suppose, I'm just talking about sodium is there, okay? Sodium is electropositive. If I talk about electropositive elements like sodium positive, potassium positive, magnesium 2 positive, so these are electropositive elements. Fluorine minus, oxygen minus, okay? So these are electronegative elements. By donating one electrons, either donating one electrons, just suppose this is your sodium. In the first orbit it is having 2 electrons, in the second orbit it is having 8 electrons, and in the third orbit it is having 1 electrons. This is 1s2, this is 2s2, this is 2p6, and this is 3s1. So this is the electronic configuration of sodium, right? So this 1 electrons, and here there is a chlorine in the first orbit, in the second orbit, and in the third orbit. In the first orbit, the chlorine is having 2 electrons. In the second orbit, the chlorine is having total 8 electrons. And in the third orbit, the chlorine is having 7 electrons. Okay, so now you can see, first of all, this sodium, this is 1s2, 2s2, 3s2, 2p6, and this is 3p4. Okay, so this is the electronic number. First of all, this sodium will donate 1 electrons. As this 1 electrons will be donated, it will convert it into sodium plus. And this 1 electrons will be removed from here and it will join here. Okay, so it will become 3p6. This will become sodium plus and this will become chlorine minus. Now this both the elements will be will be held together. They both will combine with the force. Sodium plus and chlorine minus, they both will be combined with the force. They will get one force, internuclear attraction force, and they will convert into sodium chloride. So this force of attraction, the force of attraction between the two elements which holds them together is called chemical bonding. Okay? The force of attraction between the two elements which holds them together is called chemical bonding. Is there any doubt? No. So now you can see which elements can form this chemical bond and how they can form. So remember these two types of elements, electropositive elements and electronegative elements. By this the bond can be formed. Electropositive elements, electropositive elements. By this the bond can be formed. Electronegative elements and electronegative elements. Now if I will talk about which are these bonds, so electropositive and electronegative elements gives ionic bond. Which type of bond? Ionic bond. Electronegative and electronegative elements give covalent bond. Which type of bond? Covalent bond. And electropositive and electropositive, this gives metallic bond. Means electropositive metal bond, metallic bond. So generally there are three types of bond, but we have to not study only these three. These three are the strong bonds. Remember, these three are called strong bonds. What are they called? They are called strong bonds. And there are in this this metallic bond only we'll study one more bond is in the strong bond, that is dative bond or coordinate bond. Coordinate bond, which is formed by the lone pair electron. This is coordinate bond. This is also a strong bond. And there are two weak bonds. Which are these weak bonds? If anybody will ask you what are these weak bonds, so there are two weak bonds, especially van der Waals bond and hydrogen bond.
These two are weak bonds. So these four are strong bonds. Generally, ionic, covalent, metallic and coordinate are the strong bonds, and this van der Waals and hydrogen is weak bond. So as you have seen that how the chemical bond is formed, anybody will ask you what is chemical bond, then you can just give them the answer when two elements, or you can say the force of attraction between the two elements which holds them together. The force of attraction between the two elements which holds them together, that force of attraction is called chemical bond. How this chemical bond is formed? This chemical bond is formed by the electropositive elements and electronegative elements. If anybody will ask you what is electropositive elements, then you can just give defines about the electropositive elements. The elements which donates or which loses the electrons is called electropositive elements, and the elements which gains the electron is called electronegative elements. So this thing you can write that how chemical bond is formed, which are the electropositive elements, which are the electronegative elements. Now we will move ahead. So now I will tell you something extra about these bonds. So let's start. Now the first bond question is about who had started this. So the two scientists, Cauzel and Lewis, these two scientists have starting their approach in 1960. They both have said that highly electropositive elements, and highly electronegative elements. Highly electropositive elements and highly electronegative elements. Highly electropositive elements means group first A. First A or group number 1. This is subgroup first A, group number 1. And this highly electronegative elements, this is group number 17 or subgroup 7th A or group number 17. This both the elements, highly electropositive elements and highly electronegative elements, are being separated by noble gases. What is this noble gases? Inert gases. What are they? Helium, neon, argon, krypton, xenon, right? You know very well group first elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. We will talk about this lithium to sodium, okay? And here highly electronegative 17th group, they are fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. So you will see here group number 1 and group number 17 is being separated by the noble gas group number 18. This is group number 18. So group number 1 and group number 17 is being separated by group number 18. This is highly electropositive elements, this is highly electronegative elements. Now they both will form a bond called electrovalent. Now anybody will ask you, what is this electrovalent bond? So first of all, Lewis has given a significance about the symbol. Each and every element, the outermost electron is called valence electron. Because whatever the elements are having, the outermost electrons, if I talk about the hydrogen have last 1 electrons. If I talk about magnesium has last 2 electrons in their outermost orbit. If I talk about aluminum has 3 electrons. Carbon, 4 electrons. If I talk about the nitrogen has 5 electrons. So this Lewis symbol was represented by the dots,
as they are having the valence electrons, means outermost orbit electrons. This was given by Lewis, and we will study in the covalent bond about the Lewis dot structure octet rule also. I will tell you. So what that Lewis had given a concept about, that each and every elements try to gain octet, means 8 electrons in their outermost cell orbit. So this electrovalent bond was formed by the electrostatic force of attraction. What is electrostatic force of attraction? First, just listen. As in the chapter number 3, that classification of periodic elements, I have taught you about the nuclear charge effect, right? Now just see about here sodium only, okay, 281, and here chlorine is there, 287. So now this is sodium is in solid form, chlorine is in gaseous form, you know very well. So sodium, now this sodium has to lose one electron, that's called ionization potential or ionization enthalpy, IE. Okay, so how this sodium will lose? First of all, this sodium solid will convert into sodium gaseous, and now this sodium gaseous will convert into sodium cation ion in the gaseous form by losing one electron. So the elements, the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential or ionization energy. Okay, so the first electron has been removed from the sodium and it has converted into the sodium plus. Now you have seen that how sodium plus. Now in the sodium there is only 2 and 8 electrons, means total number of electrons 10 and total number of protons 11. So now what will happen? Nuclear charge of attraction will increase or decrease? It will increase. Why? Because one electron has been loosed and there are total still 11 protons and total 10 electrons. And now here you see about the chlorine. Chlorine has accepted one electron. It has converted into, this chlorine has converted into 288. One electron it has accepted. So the nuclear charge, that means atomic size has been increased. There was only 17 protons and 118 electrons. So between these two elements, there is one force called electrostatic force. Which force? Electrostatic force. This electrostatic force binds these two elements in a chemical bond, and that bond is called electrovalent. Which one is called? Electrovalent bond. So generally Kozel and Lewis had approach to ionic bond or electrovalent bond. The main concept was, these two scientists, was to give the formation of ionic bond. How they will give the ionic bond formation? By the nuclear charge effect, as the sodium has lost one electron and chlorine has gained one electron. So this was the main concept of Kozel and Lewis, that they have just informed about how this chemical bond is formed or electrovalent bond is formed. So now if anybody will ask you about a word called electrovalency. You know the word valency? If you want to take a screenshot of this whiteboard, then you can take a screenshot. Now I will teach you about the electrovalency. So Lewis has first approached that valence electron and valency. You know very well, valence electrons means an element's outermost orbit. Outermost orbit's electron is called valence electron. किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Got it? And we know about the valency. Can you tell me what is valency? The combining capacity of an element. Combining capacity of an element is called valency. अब कोई पूछेगा ये valency होता क्या? The combining capacity of क्या combine? जिस एलिमेंट्स का जितना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, या फिर वो किसी तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके या दो इलेक्ट्रॉन दे करके नियरेस्ट इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं. तो मैं आपको एक जनरली ट्रिक बता देता हूँ. हमारा ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18
मतलब ये दोनों एस ब्लॉक और ये दोनों, ये 6 जो है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। ओके, तो इसका वैलेंसी अगर कोई पूछेगा आपको, ग्रुप एस ब्लॉक की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, ये वैलेंसीज होते हैं। इसको लर्न कर लेना, क्योंकि याद रखो इस दोनों, इस ग्रुप 1 के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। उसी तरह ये 2 करके, ये 3 करके, ये 4 को ले करके या 4 को दे करके, मतलब इधर से 1 से लेकर के 4 तक 8 माइनस 4, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके जितने भी, और इसमें से कितना है ये हमारे, अब सोच लो यहाँ पर जितना भी हमारे पास अगर कोई पूछेगा कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है या वैलेंसी कितनी है, तो कैसे जवाब दोगे? तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आउटर मोस्ट सेल, और इसमें जो है गेन करना है, तो कितना गेन करेगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8 या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो होगा हमारा यही होगा वैलेंसी किसी भी एलिमेंट्स का। याद रखना 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 से लेकर के 5 6 7 8 जितने भी हैं हमारे, तो सब एलिमेंट्स का अपना अपना अलग अलग वैलेंसीज होता है, जो हम लोगों को लर्न करके रखना है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? क्या आपने ये नाम सुना है कभी? व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी का नाम नहीं सुना होगा, नॉट एन इश्यू। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, उसी तरह से इनके वैलेंसीज को इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, किसको कहते हैं। तो अब आयनिक बॉन्ड में होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड में होगा कोवैलेंसी। याद रखना, जनरली ये दो ही बॉन्ड मेन होते हैं जो हम लोग को सबसे ज्यादा नॉलेज लेना है इन दोनों बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम प्लस है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2 प्लस है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, एल्युमिनियम 3 प्लस है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ये उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जनरली वर्ड यही है वैलेंसी। इलेक्ट्रो मतलब वही जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करके जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये सारा तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था, इनके जो भी स्पेसिफिकेशंस थे, लिविस के डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह, कॉजल लिविस अप्रोच भी मैंने बता दिया था। आज जो मैं आपको बताऊंगा ये स्पेशली डिपेंड होगा ऑक्टेट रूल के बारे में। किसके बारे में? ऑक्टेट रूल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट रूल। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये स्पेशली डिपेंड करेगा हमारा ऑक्टेट रूल, जो 1916 में लिविस और कॉजल ने अपना एक ऑक्टेट रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एलिमेंट की एफिनिटी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट करे। उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोई पूछेगा व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? तो लंगमुइर साहब ने, याद रखना ये वर्ड, उनका नाम था लैंगमुइर, LANGMUIR। उन्होंने 1919 में उनका पूरा नाम अगर आप बोलोगे तो पूरा नाम GN लैंगमुइर था उनका। जनरली याद रखना है लैंगमुइर साहब जो है 1919 में, कब? 1919 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सिर्फ और सिर्फ डोनेट करके या फिर गेन करके जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, बाय शेयरिंग ऑल्सो। शेयरिंग में भी दो टाइप के शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग के तहत भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब उन्होंने ये वर्ड कहा कि म्यूचुअल शेयरिंग से भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है केमिकल बॉन्ड का, तब थोड़ी क्रांति आ गई। लेकिन जो लिविस साहब ने दिया था कॉजल और लैंगमुइर में, फिर दोनों ने अपना ये ऑक्टेट रूल बनाया जो उन्होंने लिविस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करवाया। तो उन्होंने बस इतना ही कहा था किसी भी एलिमेंट्स का, जैसे मान लीजिए जनरली उन्होंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन के वैलेंस सेल में हम लोग जानते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। क्लोरीन के वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में, तो इन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स दोनों का शेयर करके अगर
ये लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब दोनों क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना गेन कर लिया आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो इसके थ्रू भी जो बॉन्ड बन सकता है उस बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलोगे? अ बॉन्ड which is formed, मतलब बॉन्ड तो समझ गए ना, केमिकल बॉन्ड, the force of attraction between the two elements which holds them together is called chemical bond. now which force? Now here by sharing of electrons, जब कोई दो एलिमेंट्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स या तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, अगर चार इलेक्ट्रॉन्स को ले लो, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा उसी तरह कोवैलेंसी होगा, कोवैलेंसी 1, कोवैलेंसी 2, कोवैलेंसी 3, कोवैलेंसी 4। कोई भी एलिमेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और दूसरे एलिमेंट्स को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, वन एंड अदर, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। क्या? एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर, एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में शेयर होना ही चाहिए, तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद रखना है, तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयर शुड बी कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स बाय कंबाइनिंग एटम्स टू बी शेयर्ड पेयर। दूसरा उन्होंने कहा बॉन्ड शुड बी फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन देम। कभी भी बॉन्ड जो बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी के तहत बनेगा। And the third one, the sharing of electron should be in such a way that the combining atom should attain the outer shell noble gas configuration। मतलब at least 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, दूसरा नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को दोनों एलिमेंट्स अटेन करें, और तीसरा जो कम से कम जो है दोनों अपना जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये पेयर का फॉर्मेशन करे। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कोवैलेंट, कोई भी पूछेगा आपको हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन यू कैन जस्ट गिव एन आंसर, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोई भी पूछेगा आपको कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। At least 1 electron should be shared between them, so the bond of electrons can be in the pair, and both the elements should gain inert gas configuration, nearest inert gas configuration। अब आपको आएगा, दूसरा आएगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, जो आप लोगों के बुक में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आप अपना एनसीईआरटी बुक हो या फिर नोट्स हो, उसको भी आप देख करके पढ़ सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, तो आपको सीधा सीधी याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। तो आप देख लीजिए, ये दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इनके लास्ट सेल में 4 + 2 2s2 2p4 2s2 2p4, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एटलीस्ट 1, जरूरी नहीं कि एक ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस दोनों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके, अब देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब इसकी बात करो 1 2 3 4 5 6, ये भी इसके साथ शेयर किए, क्योंकि जब भी शेयर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो इससे हमको याद रखना है कोवैलेंसी, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी था उसी तरह से कोवैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन के बीच में कितनी हो गई? 2, क्लोरीन के बीच में 1, फ्लोरीन के बीच में 1, हाइड्रोजन के बीच में 1। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे तुम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर टेल मी वन थिंग, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का ये टेंडेंसी है कि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करे? इज इट पॉसिबल? मतलब कहने का मतलब ये हुआ, क्या नेगेटिव एलिमेंट्स जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है,
क्या वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लोग हाइड्रोजन से, किस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ये निगेटिव निगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो किस तरह से बॉन्ड। इसके आगे जो हमारा थ्योरी होगा एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हमारा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा किस तरह से ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से यहाँ पे काम करता है, इसके क्या क्या ट्रेंड्स है, वो सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसके फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन 1s1, इसके भी फर्स्ट सेल में 1। तो क्या ये दोनों शेयर होंगे? क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे याद करो मैंने बताया था आपको, हर एलिमेंट की एक चाहत होती है कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन किसके नियरेस्ट में है? हीलियम के नियरेस्ट में है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, मतलब ये जब इसको देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। जो 1s2 जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो बनता है ये शेयर करके, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों जो है इसलिए इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ले लिया कि इसका 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, राइट। तो अब ये भी हाइड्रोजन इसलिए इसके साथ शेयर किया कि इसका 1s2। कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो? अब देखो शेयर कर रहा है, जब ये लेगा, अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसने शेयर किया तो ये बॉन्ड पेयर बन गया, तब ये इस हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसने इसके साथ शेयर किया तो एक समय ऐसा आता है जब इन दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस का जो है चार्ज जो है एक दूसरे के ऊपर में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियर, याद करो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो मैंने कहा था, जैसे मान लो हाइड्रोजन, राइट है, हाइड्रोजन को अगर मान लो हाइड्रोजन प्लस मैंने कर दिया, +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो इसका न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस, अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। तो अब ये दूसरा हाइड्रोजन जो था, इसका जो न्यूक्लियस था, इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और यही न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन करता है और कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो शेयरिंग जो हम लोग करते हैं वो कैसे होता है, इस चीज को समझना है तुम्हें। कि अब देखो जैसे हाइड्रोजन था, इसका 1s1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1s1 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया? इसके न्यूक्लियर में से अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चालू हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चालू हो गया। अब ये दोनों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो करके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1s2 इसका जो है फॉर्मेशन कर दिया, और ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। तो इसी तरह से कोई भी, जैसे क्लोरीन ही का मामला, जैसे क्लोरीन था, ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, लिविस डॉट स्ट्रक्चर याद रखना। सबसे पहले क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, उसके बाद जो शेयर करके वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे वो हम लोगों को बताना है लिविस डॉट स्ट्रक्चर में। कोई भी पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं पूछूंगा, अभी लिविस डॉट स्ट्रक्चर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले आपको पूछूंगा ड्रॉ द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S गैस, ड्रॉ द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, H2O2। तो इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब जैसे लिविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग Cl2 का बना रहे हैं, तो Cl2 का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप दिखाओगे यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यहाँ पे भी क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन का, जो ये क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, राइट, अपनी तरफ, अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। तो ये जो है अपना टोटल मान लो यहाँ पर लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो ये क्लोरीन जब है तो ये भी क्लोरीन कुछ करेगा, तो ये भी क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ ही खींचेगा, और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट में। तो ये जो है लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर से बॉन्ड बना है, इसीलिए यहाँ पर कोवैलेंसी जो हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी 1 है। तो ये याद रखना है तुम लोगों को, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। और तुम लोगों को मैं कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर कौन कौन से एलिमेंट का बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका H2S, सेकेंड है आपका H2O,
थर्ड है आपका CO2, फोर्थ है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिफ्थ है आपका, पहले अभी जनरली दे रहा हूं, उसके बाद दूंगा बड़ा बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये पांचों एलिमेंट की मतलब कंपाउंड का आप लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। व्हाट इज SO2। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कि सर मैं ये टॉपिक नहीं समझा, वो टॉपिक नहीं समझा, तो आप लोगों को क्या करना है पता है? कमेंट बॉक्स सेक्शन में जा करके आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि सर आई हैवंट अंडरस्टूड अबाउट दिस कंसेप्ट, सो आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट दैट कंसेप्ट। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट्स का, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स 5 कंपाउंड्स दिए हैं, आप लोग किसी भी कंपाउंड का आप लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या ये पॉसिबल है आप लोगों से कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर इतने सारे एलिमेंट्स के बन जाएंगे? कि मल्टीपल कोवेलेंस बॉन्ड का जब क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है दिक्कत होगी। मल्टीपल कोवेलेंस बॉन्ड में खाली दिक्कत होगी। इसके बाद अगर मैं आपको मल्टीपल कोवेलेंस बॉन्ड का कहूंगा ड्रॉ करने के लिए, तो आप ड्रॉ कर लोगे मल्टीपल कोवेलेंस बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड था, अब मल्टीपल कोवेलेंस बॉन्ड। ठीक है, तो अब आपको इसमें दो चीज कहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक थोड़ा डिफिकल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं जनरली आपको बता देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले जिसके पास कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको सेंटर में रखना है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को आजू बाजू में रखना है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कर लोगे ड्रॉ? देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या हो गया? इस ऑक्सीजन का देख लो 8 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का देख लो 1 2 3 4 5 6 7। इस ऑक्सीजन का देख लो। देखना है आप लोग को इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ताकि हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 8। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का तो इजी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे बनाओगे? CO का। ये थोड़ा तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बताओ कैसे बनाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड का? ट्राई करो खुद से। अगर आप लोग खुद से कर लेते हो देन आई अंडरस्टैंड दैट यू आर रियली अ जीनियस, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट। बट लेकिन कोशिश करो जो खुद से बने कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी स्टूडेंट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का बना लेता है मीन्स ही और शी इज अ जीनियस। मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझ गया आप लोगों में से सब जीनियस है। कार्बन का कितना होगा? 4, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 6। 1 2 3 4 5 6। हाउ मच? क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना शेयर करेगा, ले लेगा। तो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ पे तुम मुझे पूछ सकते हो इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ मैं सिखाऊंगा। आप लोगों को याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। कोई भी चार्ज वाला कंपाउंड है या फिर जैसे कार्बोनेट आयन है, ठीक है, कार्बोनेट CO3 2-। कार्बोनेट आयन में कोई पूछेगा आपको कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे जनरली होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप बता सकते हो। या फिर इलेक्ट्रॉन ही कहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ो। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन तुम्हें कैलकुलेट करना है तो बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। CO3 2-, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कार्बन का कितना होता है टोटल एटॉमिक नंबर? 6। उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा? 2। तो 6 + 2 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। उसके वैलेंस शेल में 6 है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8। अब कोई भी आपको पूछेगा कैलकुलेट T, यहाँ पे T का मतलब जानते हो?
total number of electrons by using the octet combined electron. अब हर एटम कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, हर मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई पूछेगा यहाँ पे देखिए CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 24। कैसे? तो ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन का 8, तो 8 + 8 + 8 24। सिमिलरली यहाँ पर देख लो CO3 - तो ये कार्बन भी 8 पूरा करेगा, ये ऑक्सीजन भी 8 पूरा करेगा, 8 + 8 × 3, 8 3 जा 24, 24 + 8 30, तो टोटल इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। गिन लो तुम लोग 32 होता है कि नहीं। 8 3 जा 24, 24 + 6 30, और ये 2 माइनस। याद रखना है किसी भी एलिमेंट, अब जैसे मान लो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का टोटल कितना हो जाएगा? देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया। टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 है, तो 8 × 2 = 16, और कार्बन का कितना होता है? 6, 6 × 1 6, कितना हो गया? 22, राइट। 8 8 16 + 6 = 22। लेकिन यहाँ पर जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो कैसे निकालोगे? याद रखना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बस सीधा सीधी यहाँ पे लिविस ऑक्टेट रूल से हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिविस ऑक्टेट रूल में हर एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे शेयर्ड कर देते हैं। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे चारों कार्बन से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट्स होगा जिसका आपको ऑक्टेट रूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, देन इट्स वेरी इजी। किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना है, तो क्या ये हो पाएगा आपसे पॉसिबल? कोई भी एलिमेंट्स दे दूँ कंपाउंड का, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे देता हूँ, उसमें आपको कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से? लिविस ऑक्टेट रूल से। लिविस ऑक्टेट रूल से आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए मैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड and acetic acid. इसमें what you have to do? Calculate total number of electrons. Total number of electrons according to Lewis octet rule. Lewis octet rule से आपको ये पांचों कंपाउंड्स के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपको याद रखना है किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन के बाद लिविस ऑक्टेट रूल को आपको समझना है, और लिविस ऑक्टेट रूल के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, या फिर आयनिक बॉन्ड रिलेटेड से भी अगर आपको कोई डाउट हो, आयनिक कंपाउंड का कि सर मैं आयनिक कंपाउंड में ये नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ, any doubt if you are having, then please do comment below this video so I can understand that you are having a doubt. अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास में आते हो तो ऑनलाइन क्लास में किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करोगे ना, then you will get more benefit। एक चीज़ और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सीरीज लर्न करके रखना। सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का और सबसे लोएस्ट होता है फ्रांसियम। फ्लोरीन का 4 और फ्रांसियम का 0.7, मतलब इस कोने से उस कोने पीरियोडिक टेबल में। ये पी ब्लॉक का 2p5 वाला फर्स्ट एलिमेंट है, और ये हमारा 7s1 वाला है। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4.0 फ्लोरीन का, सबसे लोएस्ट वैल्यू फ्रांसियम का। दोनों FF है, फ्रांसियम और फ्लोरीन। आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स याद रखना है। तो आप लोग क्या करोगे, किसी भी एलिमेंट्स को किस तरह बीच में रखना है। तो आप लोगों को जो भी वीडियोस मेरा अपलोड हो रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है, मेरे चैनल को खोल करके
सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, मैं उससे ये नहीं कहता हूँ। आप लोगों को नॉलेज लेना है, इसलिए मैं कहता हूँ जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, टाइम मिले तो एक बार ज़रूर देख लेना। अगर इंटरनेट पैक नहीं हो तो 5 रुपये 10 रुपये का आता है जियो का, या 11 रुपये का आता है एक्स्ट्रा, 700-800 MB मिलेगा। हर एक वीडियो को ज़रूर देख लेना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ में आएगा। सिंस केमिस्ट्री इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसलिए कंसेप्ट का समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।